Everyone, good morning to all. This is Sunita Yadav, your science teacher. In today's class, we discuss chapter number 8. The chapter name is body movement. This chapter we started in previous class. In this chapter, we understand about we move here and there. Okay, we using different type of organs, different type of animals. When they move, they use a different type of organs and they show a different type of movement. Then after we discuss about that point, okay, why we all use a different type of movement, है ना? Why we have a different type of movement. Okay, now first one is because we have a joint, है ना? We have a different body parts. Okay, so different body movements that help us to create a movement. Okay, we all are move any point, yeah, any organ. We all move any organ with the help of joint. What is joint? Where two bones meet together. जहाँ पर two bones क्या होती हैं, आपस में जुड़ती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? Joints बोलते हैं. Okay, then after we discuss about here is 4 type of joint. First one is ball and socket joint. Second is hinge joint, pivotal joint, and last one is fixed joint. Ball and socket joint allow movement in all direction, and hinge joint allow movement in only one direction. Pivotal joint allow movement up and down and left and right direction, and fixed joint do not allow any type of movement. Okay, then after we take a new topic, it's a skeleton. Okay, before skeleton we discuss about the bones. The bone skeleton is composed of around 305 bones at birth. The number of bones in the skeleton changes with age. देखिए जब हम बाय बर्थ, जब बर्थ होता है हमारा, ये छोटे बेबी जो होते हैं उनके अंदर हाउ मेनी बोन्स आर देयर? 305. ओके, लेकिन जैसे जैसे हम एडल्टहुड में बड़े होते जाते हैं, एडल्ट होते जाते हैं, वैसे वैसे ये जो 3000 बोन्स हैं, सम बोन्स आर जॉइंड टुगेदर एंड ओनली दिस टाइम हाउ मेनी बोन्स आर देयर? देयर आर 206 बोन्स आर देयर. ओके, तो इन एडल्टहुड आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि एडल्ट एज में हाउ मेनी बोन्स यू हैव, देन 2006 आंसर. एंड इन इन्फेंट में या छोटे बच्चे में अगर आपसे हाउ मेनी बोन्स प्रेजेंट पूछी जाती हैं कि भाई हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन स्मॉल चाइल्ड या इन्फेंट, तो आवर आंसर इज 305. ओके, न्यू वन इज स्केलेटन. दिस फ्रेमवर्क इज कॉल्ड द स्केलेटन. ये जो फ्रेमवर्क है पूरा हमारी बॉडी का, कि सर है, हाथ पैर, जैसे भी हमारी पूरी बॉडी जो बनी हुई है उसकी जो प्रॉपर शेप और साइज है, इट्स कॉल्ड अ स्केलेटन. उसको हमने क्या बोला? स्केलेटन बोला है. ओके, अब अगर सपोज करो कि आपकी बॉडी के अंदर से सारी बोन्स को, सब जॉइंट्स को हटा दें, तो क्या आप स्टेबल सीधे भी खड़े हो सकते हैं? नो. हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर पूरा किसकी वजह से बना हुआ है? स्केलेटन की वजह से बना है. जो प्रॉपर शेप और साइज है वो भी किस वजह से है? बोन्स की वजह से है, पूरे स्केलेटन सिस्टम की वजह से है. ओके, तो जैसा वो होता है वैसे ही शेप और साइज हमारी बॉडी की होती है. ओके, how do we know that this is the shape of human skeleton? How do we know that shape of the different bones in our body? We can have some idea about the shape and the number of bone in some parts of our body by feeling down. One way you could know this shape better would be look at X-ray. आपको ऐसे तो अपनी बॉडी में आप किसी सामने वाले पर्सन को देखोगे या कोई और आपको देखेगा तो क्या उनको आपका स्केलेटन सिस्टम शो होगा क्या? नो, बिल्कुल भी नहीं, है ना. हमें उसके लिए क्या? एक्सरे इमेजेस की जरूरत होती है. ओके, तो आपने देखा होगा आपके घर के आसपास में या आपके घर में कभी किसी को फ्रैक्चर हुआ होगा तो उन्होंने क्या किया होगा? एक्सरे निकाला होगा. तो एक्सरे के अंदर हमें इजीली बोन्स विजिबल हो जाती हैं. दिस वन इज एक्सरे. इस टाइप का होता है, ब्लैक शीट पे हमें बोन्स इजीली विजिबल हो जाती हैं. Did you or anyone in your family ever have an X-ray or any part of your body taken? Sometimes when we are hurt, have an accident, एक बार हमारी बॉडी को किसी चीज से जोर से चोट लगती है या एक्सीडेंट हो जाता है, तो डॉक्टर यूज दिस एक्सरे इमेजेस टू फाइंड आउट एनी पॉसिबल इंजरी दैट माइट हैव हैपेंड टू द बोन्स. द एक्सरे शो द शेप्स ऑफ द बोन्स इन आवर बॉडीज
Feel the bones in your forearm, upper arm, lower leg, upper leg. Try to find numbers of bone in each part. Similarly, feel the bones of your ankle and knee joint and compare these with the X-ray images. आप क्या करते हैं कि बोन्स को फील करो एंकल वाले साइड में, नी वाले साइड में, कंपेयर दीज जो है ये एक्सरे इमेजेस में है, ये आपके एंकल है और ये आपका नी पार्ट है। Bend your fingers. Are you able to bend them every joint? आप अपने फिंगर्स को फोल्ड करो, आपके फिंगर्स में जितने भी जॉइंट्स हैं ना, आप सब जगह से अपने फिंगर्स को फोल्ड कर सकते हो, बेंड कर सकते हो। ओके, हाउ मेनी बोन्स डज योर मिडल फिंगर हैव? आपके सिर्फ मिडल फिंगर पे ध्यान दो और उस पे देखो कि कितनी बोन्स वहां पर, कितने जॉइंट्स होंगे। हाउ मेनी बोन्स डज योर मिडल फिंगर हैव? लुक एट दिस डायग्राम। Okay, and it seems how many bones, isn't it? Is your wrist flexible? It is made up of a several small bones. आपकी wrist जो होती है ना वो flexible होती है, तो छोटे छोटे several bones से मिलके बनी होती है। It is called a carpals. What will happen if it has only one bone? अगर हम ऐसा सोचें कि हमारा पूरा हाथ या पूरी जो रिस्ट वाला पार्ट है वो एक सिंगल बोन से बना हुआ होता, तो क्या हम अपने हैंड को फोल्ड कर पाते हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं उनको पिक कर पाते हैं? नो। तो बोन्स हेल्प अस टू पिक इन एनीथिंग, और फोल्ड को बेंड करने में कौन हेल्प करता है? जॉइंट हेल्प करते हैं। ओके, एक्टिविटी 4, टेक अ डीप ब्रीथ एंड होल्ड इट फॉर अ लिटिल व्हाइल. Feel your chest bone and the backbone by gently pressing the middle of the chest and back at the same time. Count as many reps. आप अपने डीप ब्रीथ करो, अपनी चेस्ट को फील करो, ठीक है? आप उसको होल्ड करके रखो, वापस एक्सेल करो, तब अपनी चेस्ट को फील करो, तो आपको लगेगा कि आपकी रिप्स है ना बाहर की तरफ हो रही है ना, आउटवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रही है, फिर बाद में इनवर्ड डायरेक्शन में मूव हो रही है। तो व्हाट इज दिस? दिस इज अ रिब्स। ओके, और हाँ, जो ये काउंट कर सकते हैं आप अपनी रिब्स पे टच करके, इनको कैसे देख भी सकते हैं। हाँ, एक रिब यहाँ पर है, थोड़ी सी डिस्टेंस पे है, आप उसको फील कर सकते हो टच करके, है ना? तो हाउ मेनी बोन रिब्स आर देयर? देयर इज 12 रिब्स। यहाँ पर कितनी बोन्स होती, रिब्स होती है बेटा? 12 ribs होती हैं। ओके, we see that the ribs are curiously bent. They join the chest bone and the backbone together to form a box. अब देखिए, आगे की तरफ से चेस्ट के सेंटर में जुड़ा होता है और पीछे की तरफ से बैकबोन से जुड़ा होता है। व्हाट इज बैकबोन वी डिस्कस लेटर, बट हमारे बैक साइड में बिल्कुल मिडल में इस टाइप की बोन होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? बैकबोन बोलते हैं। Okay, what do you feel? They join chest bone and the backbone together to form a box. This is called the rib cage. Chest bone से जो ये bone है पीछे की तरफ backbone तक जाती है, it is called a rib cage. There are 12 ribs on each side of chest. हमारी दो ribs में 12, one left side and 12 राइट साइड। अगर हम पेयर में बोलेंगे तो 12 पेयर, एंड टोटल रिब्स की बात करेंगे तो हाउ मेनी रिब्स? 24 रिब्स। ओके, और पेयर में कितनी हो जाएंगी? 12 रिब्स। ओके, some important internal parts of our body lie protected inside the cage. inside the cage में हमारे काफी इंटरनल और डेलिकेट ऑर्गन्स जो हैं वो प्रोटेक्ट रहते हैं। कौन सा डेलिकेट ऑर्गन्स रहते हैं बेटा? लंग्स एंड हार्ट। रिब केज प्रोटेक्ट आवर लंग्स एंड heart. Okay, now we move to the next one. Ask some friend to touch their toes. आप अपने फ्रेंड को कहो कि आप बेंड होकर है ना अपने टोज को टच करने की कोशिश करो, ठीक है? एंड स्टार्टिंग फ्रॉम नेक, मूव योर फिंगर डाउनवर्ड ऑन द बैक ऑफ योर फ्रेंड। आप नेक से स्टार्ट करके आप डाउनवर्ड डायरेक्शन में उस पूरी बैक को फील कर सकते हो। व्हाट डू यू फील इज द बैकबोन? इट इज मेड अप ऑफ, मैं आप देखोगे कि छोटी छोटी, ये देखो यहाँ पर आपको दिख ही रहा है, एकदम छोटी छोटी स्मॉल बैकबोन वर्टिब्रे हैं, उनसे ज्वाइन होकर पूरी हमारी क्या बनती है? बैकबोन बनती है ना? तो इट इज मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल बोन्स कॉल्ड अ वर्टिब्रे। ये जो छोटी छोटी बोन से मिलकर हमारी जो पूरी बैकबोन बनी है, इट इज कॉल्ड अ वर्टिब्रे। और how many vertebrae present in the backbone? 33 vertebrae. ये नंबर्स बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है? इन नंबर्स पे काफी बार क्वेश्चन आता है, तो लर्न करना है अपने को। 33 vertebrae. The rib cage is joined to these bones. If backbone was made up of only one long bone, will your friend be able to bend? Make your friend stand with both hands pressed to the wall and ask her to push the wall. Do you notice?
अब देखो, अब ये तो हो गई बैकबोन की बात में, कितनी वर्टिब्रे से बने हुए हैं, 33 वर्टिब्रे से बने हुए हैं। और जो रिब केज है उससे ज्वाइन होती है, हमने ये बात रिब केज वाले साइड में भी कर ली थी कि भाई रिब्स आगे तो चेस्ट बोन से जुड़ा हुआ होता है और पीछे की साइड पे ये बोन मूव होकर बैकबोन से कनेक्टेड होती है। ओके, now make your friend stand with both hands pressed to the wall and ask her to push the wall. Do you notice? इसमें आपको क्या करना है कि आप एक वॉल के सामने खड़े हैं, उसने फ्रेंड को कहो कि उस वॉल को थोड़ा जोर से पुश करे, और जब वो पुश करे तो आप उसके शोल्डर साइड में एक प्रोमिनेंट पार्ट को देख सकते हो, वेयर द शोल्डर आर, जहां पर शोल्डर होते हैं। ठीक है, तो दिस प्रोमिनेंट बोन आर कॉल्ड, हाँ, this prominent bone is called a shoulder bone. ओके, तो दोनों साइड में होती है, एक इस साइड में होती है और एक इस साइड में। तो ये जो प्रोमिनेंट बोन है इट इज कॉल्ड अ शोल्डर बोन्स, दोनों तरफ होती है तो हम इट आर कॉल्ड बोल सकते हैं शोल्डर बोन्स। ओके, ऑब्जर्व फिगर 8.13 केयरफुली, दिस स्ट्रक्चर इज मेड अप ऑफ pelvic bones. अब ये जो है ये हमारा हिप वाला पार्ट हो गया, इसके अंदर ये जो बोन्स होती हैं इन्हें हम बोलते हैं पेल्विक बोन। जैसे शोल्डर में प्रेजेंट है तो शोल्डर बोन, और हमारे पेल्विक पार्ट में जो बोन प्रेजेंट होते हैं इसको आर कॉल्ड पेल्विक बोन्स। They enclose the portion of your body below the stomach. ये जो हमारे कहाँ पर होती है, स्टमक के नीचे वाली साइड में होती है। This is the part you sit on. ये वो पार्ट है जिस जब आप बैठते हो ना, जो बोन यूज होती है, तो ये वो बोन है, उसे बोलते हैं हम pelvic bones। और pelvic bone किसमें हेल्प कर रही है, सिटिंग में हेल्प कर रही है। The skull is made up of many bones joined together. जो हमारा स्कल है स्पेशली वो बहुत सारे बोन से मिलकर साथ में जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, इट एनक्लोजेस एंड प्रोटेक्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी एंड द ब्रेन। ये हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। इट इज कॉल्ड अ ब्रेन। क्या होता है वो पार्ट, ब्रेन। रिब केज में क्या प्रोटेक्ट रहता है बेटा, लंग्स एंड हार्ट। ओके, एंड स्कल में क्या प्रोटेक्ट रहता है, हमारा ब्रेन प्रोटेक्ट रहता है। We discussed many bones and joint of our skeleton. देखिए बहुत सारी bones हैं जो एंड जॉइंट्स के बारे में मैंने डिस्कस कर लिया अपने स्केलेटन में। दे आर सम एडिशनल पार्ट ऑफ द स्केलेटन। स्केलेटन का एक एडिशनल पार्ट और ये है भाई, हमने जॉइंट्स को इंक्लूड कर दिया एंड डिफरेंट टाइप ऑफ बोन्स को इंक्लूड कर दिया। ओके, एक और पार्ट है दैट आर नॉट एज हार्ड एज द बोन, जो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होता एज कंपेयर टू बोन एंड विच कैन बी बेंड, जो इजीली बेंड भी हो जाता है। दीज आर कॉल्ड अ कार्टिलेज। इनको आप क्या बोलते हैं, कार्टिलेज। देखो आप अपने ईयर को टच करके उसको फोल्ड करो, देन बेंड करो, है ना, इजीली बेंड हो जाता है, फोल्ड हो जाता है ना। सेम इसी तरीके से नोज का जो अपर पार्ट होता है, बिल्कुल नोज का टिप पार्ट, उसको आप लेफ्ट राइट अप डाउन और पिंच भी कर सकते हो, है ना। तो क्यों, क्योंकि जो वो हमारा ईयर है एंड नोज का जो टिप पार्ट है वो किसका बना है बेटा, बोथ आर मेड अप विद कार्टिलेज। किससे बना होता है, कार्टिलेज से बना होता है। There do not seem to any bones here, isn't it? Do you notice anything different between the earlobe and the portion of above it, and you press them between your finger? आप अपने fingers के बीच में उनको press करो। Do you feel something in the upper part of the ear that is not as soft as the earlobe, but not as a hard as a bone? आप अपने ear के ऊपर वाला part जो है यहाँ से touch करके देखो, ये वो part होता है ना, तो बहुत ज्यादा bone के comparison में hard होता है, ना बहुत ज्यादा soft होता है। We have seen that our skeleton is made up of many bones. हमने देखा कि हमारे skeleton system में बहुत सारी so many types of bones, many types of joint and so many type of cartilage. You could feel bend, move many of them. Draw a neat figure of the skeleton in your notebook. We have learned about the bones in our body and about joint that help us to move in a different way. What make the bone move the way they do? Let us find out. Okay, that's all about the skeleton point. Okay, how our muscles move, okay, and how earthworm move, how snail move, discuss in a next class. Okay, guys, take care.